So I'm starting with doubts first. Question number B का, and the first question is number 13. So question number 13 में है limit x tends to 2 x square minus 4 divided by square root of x plus 2 minus square root of 3x minus 2 और हम लोग को ये सॉल्व करना है। तो हम देखो एवरी क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स our main objective will be first to test whether it is in the form 0 by 0 or not. Without testing without testing whether it is in the form 0 by 0, we will not move ahead. हम लोग 0 by 0 फॉर्म जब तक टेस्ट ना कर ले हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 minus 4 is 0, 2 plus 2 is 4, 4 का स्क्वायर रूट is 2, 3 2 is 6 minus 2 is 4, 4 का स्क्वायर रूट is 2, 2 minus 2 is 0. So we are finding that it is in the form 0 by 0, and when we are substituting x equals to 2 both in the numerator as well as denominator, then we are getting 0 by 0 form. So to eliminate this 0 by 0 form, we have to cancel x minus 2 both in the numerator as well as in the denominator. Now to get x minus 2 in the numerator, we are going to factorize, and to eliminate root, we are going to rationalize the denominator. So let us rationalize the denominator and factorize the numerator. We can write 4 as 2 square and apply a square minus b square formula. And to rationalize the denominator, a minus b है तो numerator and denominator दोनों को a plus b से multiply करेंगे. So let us multiply numerator and denominator with a plus b. Then a square minus b square is a minus b into a plus b. This expression remains as it is, and denominator is in the form a minus b into a plus b, which is a square minus b square, which is a square minus b square. If you apply and square this expression, you get x plus 2. Square this expression, you get 3x minus 2. Also open the bracket. If you open the bracket, the simplified expression will be, let us solve this in the rough part. So we have 2 plus 2, 4, x minus 3x is minus 2x. Let us take minus 2 common, so we'll get x minus 2 into x minus 2. Because our objective is to get both in the numerator as well as denominator x minus 2. So ये एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके आ जाएगा minus 2 times x minus 2, ये और ये कैंसिल हो गया, और बाकी जो एक्सप्रेशन है वहां पे x की जगह 0 लगा देना. तो 0 plus 2 will become 2, 0 plus 2 becomes 2, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो root 2 plus 3 zeros are. Sorry. सर वो 0 Now 2 plus 2 is 4. 2 plus 2 becomes 4, and what is square root of 4? It is 2. 3 2 is 6 minus 2 becomes 4. 4 का square root is again 2 divided by minus 2. यहाँ पे आ गया 16 by minus 2, that is minus 8. So minus 8 is the answer. So everyone, जिसका भी ये doubt था नंबर 13 एक बार कॉपी कर लें. अब मैं नंबर 14 बताया, फटाफट कॉपी करो. In question number 14, we have x tends to 4. Then we have 3 minus square root of 5 plus x divided by 1 minus square root of 5 minus x. Now note down everyone. So
if you have doubt in question number 14, then 17, it's all, I mean, same, it's similar doubt. 14 और अगर 17 में भी डाउट है तो ये एक जैसा ही है. देखो ये सब में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज, बट हम इस तरीके से अभी हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे. पहले हम एक बार देखते हैं कि 0/0 फॉर्म में है. x टेंड्स टू 4 है तो 5 + 4 9 हो गया. 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 - 3 0, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 - 4 0 हो गया. So we are finding that जब हम x का वैल्यू 4 लगा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम देख रहे हैं 0/0 आ रहा है. तो फिर ये 0/0 फॉर्म हटाने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x - 4 लाके कैंसिल करना पड़ेगा. देखो इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में भी रूट के फॉर्म में एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में भी रूट के फॉर्म में. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज, रूट हटाना है. इस सम में मुझे ऊपर नीचे दोनों जगह रैशनलाइज करना पड़ रहा है. सो ये थोड़ा सा लंबा सम हो जाएगा. लॉजिक से भी ये कि रैशनलाइज ही करना पड़ रहा है. इसमें लॉजिक ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ और अप्लाई कर रहे हैं. तो यहां पे हम रैशनलाइज करेंगे. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे. किससे? a - b है तो a + b से. उसके बाद डिनोमिनेटर में भी a - b है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a + b से मल्टीप्लाई करेंगे. अब बात ऐसा है, यहां पे ध्यान से नोट करना, इसमें a - b है, लाना है a + b. ये एक्स्ट्रा है, ध्यान देना. ये क्या है बताओ तो? ये एक्स्ट्रा आई मीन एक्सप्रेशन फैक्टर है. यहां पे a - b है, a + b तो मल्टीप्लाई करना है. याद है ना लास्ट में मैंने समझाया था कि हम लोग रूट हटाने के लिए इसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए, तब जाके a² - b² आएगा तो रूट हटेगा. तो यहाँ a - b है तो a + b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लाए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया. देखो ये और ये एक्स्ट्रा है, इसको कुछ नहीं करना है. ये जैसा है वैसे ही हम लोग को हर एक स्टेप में लेके चलना पड़ेगा. समझ में आया तो बात? जरूरत मुझे इस चीज का था, इसके साथ इस चीज का जरूरत था और इसके साथ इस चीज का जरूरत है. बट तुमको पता है कि एक फ्रैक्शन में हम लोग सिर्फ एक जगह हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते. सपोज एक फ्रैक्शन में a/b, तो हम अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये रूल है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा ही नहीं. समझ में आया तो बात? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. लेकिन ये दो चीज क्या बताओ तो एक्स्ट्रा फैक्टर है. उसको क्या करना है, उसके साथ मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो बस हमको लेके आगे चलते रहना है बस, और कुछ नहीं. नाउ सी, वी हैव a - b into a + b, which becomes a² - b². So 3 का स्क्वायर becomes 9 माइनस इसका स्क्वायर जो है रूट हट जाएगा. तो मैं स्टेप शो नहीं कर रहा हूं बिकॉज हम लोगों ने काफी बार किया है और ये तुम लोग पहले भी किया होगा कोई क्लासेस में, जूनियर क्लास में. तो ये मैं स्टेप्स नहीं शो कर रहा. समझ में आ गया होगा? a - b into a + b is a², 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाय a - b into a + b is a² - b². तो ये एक्स्ट्रा था, देखो वैसे हम लोग ने रखा, और ये एक्स्ट्रा है, इसको बस ऐसे रख दो. ठीक है, ये हमको लेके ऐसे चलना पड़ेगा. अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे इस वाले पार्ट में. तो ब्रैकेट हटा करके क्या आएगा? 4 - x. देखो एक बार ब्रैकेट हटा करके एक बार सॉल्व कर दो. माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 9 - 5 is 4 - x डिवाइडेड बाय -4 + x. अब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बताओ तो हटाना क्या है, बताओ तो क्या काटना है, बताओ तो ऊपर नीचे x - 4 काटना है. तो यहां से हम क्या करेंगे, 4 - x से मैं माइनस साइन कॉमन लेके इसको x - 4 बना दूंगा. -4 + x को हम लोग x - 4 भी लिख सकते हैं. So x - 4 gets cancelled. Now in the next step we are going to put the value of x equals to 4. You get a minus 5 - 4 is 1. 1 का स्क्वायर रूट is 1.
1 plus 1 is 2. So we have minus 2 in the numerator. 5 plus 4 is 9. 9 plus square root is 3. 3 plus 3 is 6. So the answer is minus 1 by 3. So this is the solution of question number 14. Now suppose if you have doubt in number 17, if you have, then the logic is same. You have to rationalize numerator as well as denominator. Copy down fast this question. Now we'll do number 15. So everyone see question number 15. So first let's check whether it is in the form 0 by 0 or not. Let us check whether it is in indeterminate form or not. Now, so let us put the value of x equals to 1. So we have 1 square, which is 1, square root of 1, which is 1, root 1, which is 1 minus 1 is 0. We are getting 0 by 0 form. And what is the reason we are getting 0 by 0 form? Let's determine the reason. हमको solve करके करना क्या है? हमको solve करके numerator और denominator में x minus 1 को cancel करना है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं पहले एनालाइज करूंगा कि फैक्टराइज करना है या रैशनलाइज. अभी तो दो ही चीज सिखाया मैंने. रूट है तो हम कभी भी रैशनलाइज फैक्टराइज के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं. रूट है मतलब रैशनलाइज. तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, क्योंकि दोनों में रूट है. तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया और अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. ओके, ये एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा है जैसे पिछले वाले समय था. नाउ a minus b into a plus b, a minus b into a plus b is a square. So what is x square का whole square? You know power gets multiplied. So this becomes x to the power 4. Root x का whole square कितना हो जाएगा? x. और ये जो है ये एक्स्ट्रा जैसे है वैसे हम लोग को हर स्टेप्स में लेके चलना ही है. हम लोग को a minus b into a plus b, a square minus b square. और ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ये जैसा है वैसे लेके चलना है. नाउ वी आर फाइंडिंग दैट मुझे x minus 1 चाहिए है कि नहीं. डू यू रिमेंबर दैट x minus 1 ऊपर नीचे चाहिए. ये देखो रैशनलाइज करने के ठीक बाद डिनोमिनेटर में x minus 1 आ गया, बट न्यूमरेटर में अभी भी x minus 1 नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद now we have to factorize x cube minus 1. How to factorize x cube minus 1? We can write 1 as 1 cube and apply a cube minus b cube ka formula, which is a minus b into a square plus b square plus ab. All right, formula kya hai? A minus b into a square plus b square plus ab. All right, तो मैं न्यूमरेटर में x cube minus 1 के जगह पे, ठीक है, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? a cube minus b cube का, जो कि a minus b into a square plus b square plus ab है. ठीक है, देखो जब तुम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ज्वाइन किया था मैंने ये सारे फॉर्मूला दिया था, देखो कॉपी में. तो फिर हम लोग इस जगह पे x minus 1 x square plus x plus 1 लिखेंगे. ये रहा. एंड नाउ जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव था ऊपर नीचे x minus 1 लाने का आ गया, कैंसिल कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में x square plus x plus 1 root x plus 1 कितना आ गया. ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है. 1 into 1 square plus 1 plus 1 becomes 3 into 1 का root is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 is 2, 2 2 cancel हो गया, 3 1 3. So answer is 3. So we have done number 15. Now last is number 18. Now I was observing number 18 and I found that there is mistake. It is not in the form 0 by 0. यहाँ पे कुछ wrong है, यहाँ पे कुछ mistake है. और वो mistake क्या है देखना एक बार. हम बोर्ड पे लिख देते हैं, इसके बाद सॉल्व हो जाएगा. कॉपी कर लेगा पहले. And now इसके बाद हम लोग start करने वाले हैं. Next. So everyone wrote down question number 18. See, at this level I'm quite sure that I won't give question like this, but suppose if this sum comes in exam, do you know what is the answer? Can anyone tell me what is the answer of this sum? Okay, tell me, anyone who wants to try?
कि इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? √2 - 2/2। इसका आंसर हो जाएगा सीधा √2 - 2/2। बट आई एम क्वाइट श्योर, मैं ये बात बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इस लेवल में ये सब तो जरूर नहीं दूंगा, बट एग्जाम में आ सकता है इस तरह का सम। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक सम में तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा चेक करने का कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या। तो क्वेश्चन क्या मैं देना चाहता था शायद उस समय, √x - 1 और यहाँ पे √2 होगा। अब सही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबको एक बार करेक्शन कर लेना और ये लिख देना एक बार, √3 - x minus √2 by √x - 1. This is the correct one. And after this, now we begin number C. Number C में हम लोग देखना फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। So I want your attention here, everyone. See. So what are the, I mean, which are the formulas we have to apply here? Let me write on that, and then I'll take one example to explain you how to use the formula. Now see, मैंने एक फॉर्मूला दिया था, limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. If you check your formula copy, you'll find this formula is the first formula जो मैंने तुमको लिमिट्स में दिया। अब एक बार क्वेश्चन देखो। सपोज मान लो क्वेश्चन है लिमिट x tends to 2, x² - 4 divided by x minus 2. I want your attention here. In the first step, we are going to check whether this expression, this function is in the form 0/0 or not. So if I put x equals to 2, 2 का square is 4, 4 minus 4 is 0, 2 minus 2 is 0. So again we are getting 0/0 form when we are substituting x equals to 2. It means to eliminate 0/0 form, we have to factorize or any other method and cancel this x minus 2 from the numerator as well as denominator. Now we clearly see that we can write x² - 4 as x² - 2 square, and we can apply the formula a² - b square to solve this sum. And we are getting what? Limit x tends to 2, x plus 2. Now we can put the value of x equals to 2. So 2 plus 2 is 4. Just wait for a second. ध्यान रखना, ये सब किया ही फिर भी बता क्यों बता। एक और एग्जांपल में लेता हूं। सपोज we have limit x tends to 2, x to the power 5 minus 32 divided by x minus 2. Now if I substitute the value of x equals to 2 here, 2 to the power 5 is 32, 32 minus 32 is 0, by 2 minus 2 is 0. We are getting 0/0 form. Again we are finding that when we are substituting x equals to 2, we are getting 0/0 form. It means to eliminate 0/0 form, we have to cancel x minus 2 from the numerator as well as denominator. So to do this, we need to factorize. But जितने आसान तरीके से ये सम में फैक्टराइज हो गया था, ये सम में फैक्टराइज होके सम सॉल्व हो गया था, इस सम में फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल है। इस सम में बहुत मुश्किल है। हो तो जाएगा, तुम लोग सोच रहे होगा कैसे होगा, बिल्कुल हो जाएगा फैक्टराइज। याद होगा तुम लोग को मैंने फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक में कराया था कि अगर हमको पता है कि ये एक्सप्रेशन का एक फैक्टर, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x minus 2 है, तो हम उसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं। हमको अगर पता है कि x to the power 5 minus 32 का एक फैक्टर x minus 2 है, तो बिल्कुल फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे 12 का एक फैक्टर 3 है, तो 12 को 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक वैसे ही x to the power 5 minus 32 को अगर मैं x minus 2 से डिवाइड करूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो देखना रिमाइंडर लास्ट में 0 आएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इतना क्यों करेंगे? जब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव वेज है तो हम ऐसा क्यों करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। हम इतना अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे डिवीजन करके? हम क्या करेंगे? लिसन, इस फॉर्मूला को ध्यान से एक बार नोट करना। इस फॉर्मूला में तुमको अप्लाई करने के लिए कुछ चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक बार ध्यान से नोट करना। देखो यहाँ पे x टेंड्स टू a है, देखो x टेंड्स टू a है, ठीक है,
और अगर तुम ध्यान दो तो टेंस टू के लेफ्ट में जो है वही यहाँ पे है। देखो यहाँ पे तीन जगह से, एक दो, देखो एक दो तीन, तीन जगह से है। और x टेंस टू के बाद जो वैल्यू है कांस्टेंट, देखो यहाँ पे ये चीज एक दो और तीन जगह सेम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पे माइनस है और यहां पे भी माइनस है, ठीक है। इसका पावर और इसका पावर भी सेम है, देखो। तो हम जाके इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। और एक और खास बात देखना इस फॉर्मूला का, तुम x के जगह a लगा के देखो, a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n क्या हो जाएगा, जीरो, बाय a माइनस a क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैं तुमको फॉर्मूला भी डिराइव करके बता दूंगा, डोंट वरी, एक बार में इतना कुछ नहीं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, अभी नहीं, एक बार मैं सम कंप्लीट कर दूं उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम यूज करके मैं ये फॉर्मूला भी, चाहोगे तो अगर तुम लोग को देखना है तो मैं डिराइव जरूर करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करते हैं। तो एक बात बताओ तुम लोग, इस सम को और इस सम को मैं ये फॉर्मूला लगा के कर सकता हूं या नहीं, देखो देखो, x x x तीन जगह से है, एक दो तीन, टेंस टू के लेफ्ट में, टेंस टू के राइट में a है, टेंस टू के राइट में 2 है, एक दो तीन जगह से, बीच में माइनस होना चाहिए दोनों जगह, और x का पावर में जो है वही a के पावर में होना चाहिए, 2 के पावर में, जो कि a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ तो, बोलो तो एक बार आंसर। यस, एनीवन यू कैन, कोई भी ट्राई कर सकता है, बताओ तो आंसर बोलो क्या है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। तो तुम भी बताओ तो इसके बाद क्या है, बस फॉर्मूला लगाना है, बोलो। 5 into 2 to the power 4. Sir, 80. So we find that what is n here? N is 5. So formula क्या है? N that is 5 into a that is 2 to the power n minus 1 that is 5 minus 1, which is 4. 2 to the power 4 is how much? 16. And 16 times 5 is how much? 8080. It is the correct answer. Now you can do the same sum. Instead of factorization, you can use this formula method. We have x tends to 2, x square minus 2 square by x minus 2. See, all the criteria of this formula is satisfying. जो भी इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए जो भी चीज कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे x x x दोनों जगह ऊपर नीचे माइनस है, a दोनों सेम है, देखो यहाँ पे 2 2 2, और इसका पावर और इसका पावर सेम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n that is 2 into a that is also 2 to the power n minus 1. So what is the answer? Answer is 4. So are you understanding कैसे हम लोग फॉर्मूला को यूज करके इतना लंबा सम को हम एक लाइन में, देखो एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप में आंसर, 1 2 3 4 5 5 स्टेप यहाँ पे लगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अपने लोग यहाँ पे डिवाइड करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम लोग क्या किए फॉर्मूला लगा के सम को सॉल्व करेंगे। Okay, so I want everyone to copy down both the examples along with the formula and like ask whatever doubts you have. अगर तुमको फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मैं एक बार टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग और आगे आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा और डेप्थ में मतलब बताएंगे कि मतलब पहले उसके बाद डेरिवेशन, कि ये फॉर्मूला को क्या ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले। लिसन ये देखिए, मैं एक बार और यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a. So everyone note down one thing. In order to apply this formula, one thing is very very important. x का और a का पावर को एक बार इग्नोर कर दो, एलिमिनेट करो। तो जो न्यूमरेटर में बचा एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात का हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर हम x का पावर जो भी है, a का पावर जो भी है, मतलब एलिमिनेट नहीं करना, मतलब मैंने बोला उसको डक करके देखो क्या बचा न्यूमरेटर में, x माइनस a, ये सेम चीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट 1 2 3 1 2 3, बीच में माइनस ही होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, और दोनों का पावर सेम तो होना ही चाहिए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए। Now suppose I take one more example. Suppose we have x tends to 3, x to the power 4 minus 81 by x minus 3. Everyone think and answer me less than 30 seconds. Again, I find that almost everyone knows this solution, that it is in the form 0 by 0. Okay, now we know that we have to eliminate what, but we are not going to apply that way, to do that way. We are going to
apply formula method. We will write 80 minus 3 to the power 4. x same है, 3 same है, minus दोनों का power same है. So if you apply that formula, it is 4 into 3 to the power 4 minus 1, that is 3. 27 times 4 is 108. And also check कि पावर को इग्नोर करने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो नीचे है, हाँ है, अगर है आराम से अप्लाई कर लो फॉर्मूला. साथ में ये दो तीन चीज सेम होनी चाहिए और ये तीन चीज सेम होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज मान लेते हैं एक सम मैं लेता हूं, सपोज x टेंड्स टू, लेट्स टेक एक दूसरा एग्जांपल. लेट्स टेक x टेंड्स टू 2, x to the power 4 minus 16 by x to the power 6 minus 64. ध्यान देना. अब यहां पे हम थोड़ा सा लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि थोड़ा सोचना और पड़ेगा. ठीक है, लेकिन इससे पहले हम अब एक प्रॉपर्टी दे देते हैं. मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है देखना है. अपने फॉर्मूला कॉपी में देखना तुम लोग, ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है. लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx can be written as limit x tends to a fx whole thing divided by limit x tends to a gx. इस प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से नोट करना. अब हम ध्यान से एक बार देखना कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 लगाऊं तो 2 to the power 4 कितना होता है 16, minus 16 is 0, 2 to the power 6 64 होता है. चेक कर. अब मैं यहाँ पे ये सब थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं. हमेशा फैक्टराइज करके सम को टफ क्यों बनाएंगे, थोड़ा इजी करते हैं. इजी कैसे करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला वाइज सोचते हैं. अब ध्यान देना. Now let us write 16 as 2 to the power 4 and 64 as 2 to the power 6. All right students, I am writing 16 as 2 to the power 4 and 64 as 2 to the power 6. All right, अब ध्यान देना. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने ये बताया था कि ऊपर पावर हटाओगे तो वो नीचे होना चाहिए. पावर ऊपर हटाओगे x minus 2 नीचे होना चाहिए. नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है. यहाँ पे 6 है, x minus 2 होता तो बहुत बढ़िया था. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखना. यहाँ पे इस सम में मैं फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी को आराम से यूज कर दूंगा, क्योंकि मुझे नीचे उसका x minus 2 चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में x minus 2 चाहिए. कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हम लोग को सारा प्रॉपर्टी पता है और ये सब चीज बहुत कॉमन है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से डिवाइड, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई, मतलब ये है सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे x minus 2 से डिवाइड किया. फायदा पता है क्या हुआ, एक चीज से, एक सोच से दो सॉल्यूशन मिल गया, दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया. कैसे बताओ तो मुझे. मैंने जब ऊपर नीचे x minus 2 से डिवाइड किया तो तुम ध्यान से नोट करो, ये अपने में एक सम बन गया जो कि इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ रहा है, और ये भी एक अलग सा फॉर्म में आ गया. मतलब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया. देखो ये अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, जहां पे ये फॉर्मूला ऊपर नीचे दोनों जगह लगा सकते. चेक कर लो, है कि नहीं. अब लेकिन इससे पहले मुझे एक और चीज थोड़ा करना पड़ेगा. क्या, कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू a है और फ्रैक्शन है, ठीक है, और जरूरत पड़े तो लिमिट ऊपर और नीचे दोनों जगह हम लगा सकते हैं. ये तुम्हारा प्रॉपर्टी लिमिट्स में अलाउ करता है कि तुम लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग यूज कर सकते हो. तो यहां पे मैं लिमिट का ऊपर प्रॉपर्टी, मतलब लिमिट ऊपर लगा देता हूं और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी अलग अप्लाई कर दूंगा. ठीक है. अब बताओ मुझे, तुमको नहीं लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे बस क्या किया था मैंने, बताओ तो, दो अलग अलग क्वेश्चन को देखो. अगर हम देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को क्या किया था मैंने, ऊपर नीचे x minus 2 काट के और ये क्वेश्चन दे दिया था. नहीं लग रहा है तुमको, देखो तो क्या किया था, ये तो किया था. मतलब दो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया और वो दोनों क्वेश्चन का x डिवाइड कर दिया तो ये बन गया नया क्वेश्चन. बस इतना ही तो किया. तो अब तुम ऐसे सोचो कि ऊपर कौन सा फॉर्मूला रहेगा, 4 into 2 to the power 4 minus 1, और डिनोमिनेटर में 6 into 2 to the power 6 minus 1, that is 5. So we have 4 into 2 to the power 3, 6 into 2 to the power 5, that is how much, 1 by 6. करेक्ट. एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन. ठीक है, 1 by 6 आ जाए. अब देखो एक चीज, एक मिनट, हमको पता है क्वेश्चन क्या है, लेकिन
मैंने एक फॉर्मूला भी तो दिया था, फॉर्मूला क्या था? एक और फॉर्मूला में अब लिख रहा हूं बोर्ड पे, सेकंड फॉर्मूला अपने कॉपी में देखना सब कोई, अपने कॉपी में सेकंड फॉर्मूला सब कोई देखना, तो ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा। और क्या था बताओ तो, m/n a to the power m minus n, ये फॉर्मूला था, अपने अपने कॉपी में देखना सब कोई। अगर हम उस फॉर्मूला को गौर से देखें तो क्लियरली ये एक्सप्रेशन, इतना दिमाग नहीं लगा करके सीधा इसके बाद तुम एक बार ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो, एक बार सीधा इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो और सीधा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इस लाइन में बताओ, सीधा इस लाइन में इतना कट करके बताओ क्या होगा आंसर, बताओ इसके हिसाब से। n क्या है, n क्या है बताओ पहले, देखो तो 4 और 6। तो सीधा सा बात, n क्या है बताओ तुम, 4 है, n क्या है 6 है, और a क्या है, वो तो सेम होना ही पड़ेगा तभी जाके फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या है, m/n दैट इज 4/6 a to the power m minus n। तो देख लो सॉल्व करके, सेम ही आंसर है, ठीक है, सेम आंसर है। 2 to the power -2 मतलब 1/2 स्क्वायर, आंसर इज 1/6। तो सीधा हम इतना को काट करके सीधा हम कर सकते हैं, बट मैंने क्यों नहीं बताया, बता रहा इस तरीके से। मेरा इसके पीछे दो पर्पस था, एक तो ये प्रॉपर्टी को तुमको बताना, इस तरह का ऑपरेशन जानना चाहिए। दूसरा चीज, बहुत सारा समय क्या होता है कि ठीक है ये सब अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखें तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, अपने आप को आंसर चेक करने के लिए, बट होता है क्या है कि बहुत सारे स्कूल में ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो देख लेना तुम लोग, तुम्हारे स्कूल में अगर ये फॉर्मूला को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो करना, नहीं किया जा रहा तो मत करना, सीधा सा बात। मैंने दोनों लिस्ट बता दी, ये हो गया तुम्हारा पूरा चीजों को समझा के और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। तो मैं चाहता हूँ एक बार सबको पहले फॉर्मूला कॉपी कर लो, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मैं 2 डिस्कस कर लेता हूँ, देखना एक बार बोर्ड में। Now, question number 2 है, it is limit x tends to -2 x cube plus 8 divided by x plus 2. Now note down everyone, if I put the value of x equals to -2, we are getting 0/0 form, check once, -2 का cube is -8 plus 8 by -2 plus 2, 0/0 आ गया। हम फैक्टराइजेशन नहीं अप्लाई करने वाले, इससे ज्यादा इजी मेथड है। क्या, पहले हम 8 को 2 क्यूब लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हम +2 क्यूब को माइनस ऑफ -2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज देखो -2 का होल क्यूब कितना होता है, -2 का होल क्यूब होता है -8, ठीक है ना, और माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब हम +2 क्यूब को माइनस ऑफ -2 क्यूब लिख सकते हैं, और x plus 2 को x minus of -2। Now if we see the formula 1 2 3 -2 -2 -2 माइनस माइनस दोनों का पावर सेम है, तो आंसर होगा n into a to the power n minus 1। So what is the answer? 12। So question number 4 is x tends to 1, x to the power n minus 1 divided by x minus 1. So I want your attention here, just note down, if you put x equals to 1, 1 to the power anything is 1, 1 minus 1 is 0, by 1 minus 1 is 0. Now very simple thing which we can do is, we know the way how to apply the formula, so we can write 1 as 1 to the power n. Now why are we doing this? Because we know that in order to apply the formula, ये फॉर्म ऐसा होना चाहिए। So what is the answer? n into a to the power n minus 1, that is n, 1 के पावर कुछ भी 1 into n। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। किसी को फिर भी डाउट है तो बोल सकते हो, you can just write in chat or you can
Speak if you have any doubt. Anyone? 4 के बाद 6. 6 तो बहुत सिंपल है. 6 is very simple. I'm just showing the calculation, but I'm 100% sure that किसी को doubt नहीं होगा. अच्छा, which method you all are doing? I mean the formula, direct formula method or that division वाला? सर m/n वाला. m/n वाला कराया गया ऐसे इस तरह का तुम लोग को, मतलब m/n वाला स्कूल का पता नहीं सर. सर नहीं करवाया वैसा तो. क्योंकि ना मैंने जो देखा मैं तुम लोग को बता रहा हूँ. एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ पहले, क्योंकि ना लिसन यू. सो ऊपर नीचे x - 5 से डिवाइड करना. देखो समझने के लिए तो दोनों मेथड आएंगे समझ में, लेकिन करना ये मेथड है ज्यादा ठीक है. मल्टीपल चॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई मेथड करना. So the formula is n 5 to the power 3 और ये हो गया 4 5 to the power 3. I made some mistake over here. Yeah, this is 3. Sorry. 3 5 to the power 2. So if you reduce, you get 4 into 5 by 3, and that is 20 by 3. All right. Now we have question number 11. Sir, 14. 14 and 16 का 2 method. Now before सर this, let me- 14 का आंसर 6/5 है. हाँ करेक्ट है. Now if you will understand 11, you will be able to number 14. 11 का ही concept यूज होगा 14 में, तो ध्यान देना है. We have limit x tends to a, x plus 2 to the power 3 by 2 minus a plus 2 to the power 3 by 2 divided by x minus a. So I want your attention everyone. जिसको जिसको डाउट है सब देखना, या जिसको डाउट नहीं भी है वो भी देखो एक बार. इसका रीजन वो पता चलेगा. हो सकता है आंसर आ गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्टेप में कुछ गलती हो गया होगा, मिस हो गया होगा. तो मैं यही बोलूंगा कि सबको एक बार ये समझो. सबसे पहला चीज, लेट अस पुट x इक्वल्स टू a plus 2 to the power 3 by 2 minus a plus 2 to the power 3 by 2 is 0 by a minus a is 0. Now see, if you see the formula, we can apply the formula. I mean अप्लाई करने से पहले ये सब चीज को तो ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है ध्यान देना. देखो ये बहुत बेसिक चीज है. पावर को ढक दो न्यूमरेटर तक, बचा x माइनस a. ये चीज डिनोमिनेटर में लिख दो, मतलब होना चाहिए, लिख दो नहीं मतलब होना चाहिए. तब जाके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n into a to the power n minus 1. साथ में 1 2 3 से होना चाहिए, 1 2 3 माइनस माइनस से होना चाहिए. तो ध्यान रखना 0/0 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम पावर को ढक दें तो दिख रहा है सबको. क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में? क्या है न्यूमरेटर में? दिख रहा है x plus 2 minus of a plus 2. अब मुझे तुम लोग ये बताना कि क्या ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है या नहीं, बताओ. यस सर. यस है नहीं है? एक जब बोला नहीं है और नहीं है. श्योर अगर पावर के बिना है लेकिन पावर के साथ नहीं है. हाँ वही एग्जैक्टली, मैं पावर को हटा के बोल रहा हूँ. पावर को अगर हम हटा दें तो वही तो मैंने बोला ना, पावर हटा दें तो जो एक्सप्रेशन है मैंने यहाँ लिख दिया. देखो ये, तो क्या ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर है? अब है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है. एक चीज है, इस फॉर्म में नहीं है बट इस फॉर्म में नहीं है. कैसे? देख लो, 2 कैंसिल हो गया, x माइनस a. मतलब डिनोमिनेटर में x माइनस a है, बट हम देख रहे हैं कि x माइनस a is equal to this expression. So if both these expressions are same, why can't I write in the denominator at the place of x minus a? I can definitely write x plus 2 minus of a plus 2. I can write. बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है. तो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे,
हम डिनोमिनेटर में x माइनस ए की जगह पे x प्लस टू माइनस ऑफ ए प्लस टू लिख देंगे। ठीक है, देखो मैंने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, अब देखो, अभी हमको एक और चीज ध्यान रखना है, ये चीज टेंस टू के लेफ्ट में होना चाहिए और ये चीज टेंस टू के राइट में होना चाहिए। क्या x प्लस टू टेंस टू के लेफ्ट में है? नहीं है। a प्लस टू टेंस टू के राइट में है? नहीं। तो एक बात बताओ, x टेंस टू a में दोनों तरफ क्या हम लोग ऐड करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये। बताओ तो, कोई बता सकते हैं? सब प्लस टू। प्लस टू, वेरी गुड, वी हैव टू ऐड टू बोथ द साइड्स। ये चीज बहुत लोग शायद मिस कर दिया हो, हम बोलेंगे तुम लोग ये लिख लेना। सो वी हैव x प्लस टू टेंस टू a plus 2 x plus 2 to the power 3 by 2 minus a plus 2 to the power 3 by 2 by x plus 2 minus of a plus 2. All right, now if you see the formula, it is n, that is 3 by 2 into a plus 2, a की जगह पे a plus 2 to the power 3 by 2 minus 1, and the answer is this much. This is the answer. Okay, now I'll tell you this formula is derivation which I am showing. उन्हीं लोग समझ पाएगा who has done this binomial theorem, पहले मैं बताता हूँ। So please ध्यान से नोट करना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में कोशिश वापस करूंगा बाइनोमियल जब तुम समझ जाओगे तुम, क्योंकि इसके बाद हमको ये और ये सब बताना है। ठीक है, तो ध्यान दें। So this is the formula derivation of x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a. So everyone note down, this is very interesting. If you put x equals to a here, a to the power n minus a to the power n is 0, a minus a is 0. So we are finding that जब हम x का वैल्यू a लगा रहे हैं तो फिर ये 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब मुझे 0 by 0 फॉर्म हटाने के लिए ऊपर नीचे x माइनस से कैंसिल करना पड़ेगा ना। ऊपर नीचे x माइनस से कैंसिल करने के लिए नीचे x माइनस से तो है, ऊपर x माइनस से लाना है। देखो लाने के लिए हम कौन सा टेक्निक को यूज करेंगे देखते हैं। x टू द पावर n को मैं x माइनस a प्लस a लिख सकता हूं, चेक करते हैं। एवरीवन नोट डाउन, क्या मैं x टू द पावर n को x माइनस a प्लस a लिख सकता हूं, चेक कर लो। Okay, I'm writing x minus a plus a because x minus a plus a is same as x to the power n. I mean इसको, ठीक है। अब देखो इसको हम एक्सपांड करेंगे, कैसे देखना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं x minus a, you know that बाइनोमियल में तीन चीज का फैक्टर होता है, एक होता है NCR, x minus a टू द पावर n माइनस r। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, तुमको पता है कि सेकंड टर्म बाइनोमियल में जो सेकंड टर्म होता है उसका पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है और पहला टर्म का पावर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सिंपल बना दूंगा। पहले आई विल राइट दिस एज a प्लस ऑफ x माइनस a। नाउ आई विल एक्सपैंड। So we have NC0 a to the power n x minus a, NC1 a to the power n minus 1 x minus a whole to the power n minus 1, sorry whole to the power 1, यहाँ 0 आएगा, मैं गलती से 1 लिख दिया, प्लस NC2 a to the power n minus 2 x minus a का whole square, and this will continue till NCn a to the power 0 x minus a whole to the power. Now as a result what we are finding in the next step, you'll find that एक ये पार्ट बन जाएगा a to the power n। देखो ध्यान से, ये पार्ट बन जाएगा a to the power n। ठीक है, ये हो जैसा है वैसे रहने दो। ठीक है,
NC2 a to the power n minus 2 x minus a whole square plus dot 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 NCn a to the power 0 which is 1 x minus a minus a to the power n, ये वाले कैंसिल हो गए। बाकी सब में से हम लोग x माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। देखो तो सब में से x माइनस ए कॉमन ले लो तो बच जाएगा क्या NC1 a NC2 a to the power n minus 2 x minus a NCn x minus a, यहाँ गलती मैंने लिखा है n होगा, सॉरी n होगा, यहाँ गलती से मैंने इरेज कर दिया था, ठीक है। और लास्ट में मैंने यहाँ x माइनस से सब में कॉमन लिया तो यहाँ पे पावर में n माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस से कैंसिल कर देना और बाकी में x की जगह 1 लगा दो। x की जगग 1 लगाएंगे तो a माइनस से 0, ये पार्ट 0 हो गया, a माइनस से 0 मतलब सब में x माइनस से है ही, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया और क्या आ जाएगा बताओ तो? आंसर आ जाएगा NC1 into a। Now what is NC1 into a? Just a minute. Sorry, मैंने एक जगह और गलती की, बता सकते हो गलती क्या है? What is that mistake? Can you tell me what is that mistake? Anyone? a के पावर में क्या है बताओ तो? n minus 1। जल्दीबाजी में मैं ये थोड़ा छोड़ दिया। Now what is NC1? NC1 is n, तो आंसर क्या होगा? n into e to the power n minus 1। So this is the proof part of this formula. So what you find कि हम लोग को हर सम हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाइनोमियल का कंसेप्ट लगा के। Everyone try 14 and 16 at home. Try 16 two ways. One factorization method and the other is formula method. Okay, so this way I'm ending today's class.